Hello students, I am Satvesh Singh and today we will start our first chapter of computer subject. Computers, past, present, and future. It means that in this chapter we will discuss about the computers technology, what technology is being used in the past, which technology we are using right now, and what are the future perspective of computers technology. So before we move forward to our next point, here are few images and we have to match these images based on the option given which we have learned in class 5th. So let's get started. First point is एनालिटिकल इंजन. तो जैसे कि हमने क्लास 5th में पढ़ा है, एनालिटिकल इंजन ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इमेज को. राइट साइड थर्ड इमेज, देन सेकेंड ऑप्शन टेबुलेटिंग मशीन, थर्ड इमेज फ्रॉम लेफ्ट साइड, then third number Leibniz calculator which reflects this image. Fourth point abacus. You are very familiar with abacus. It is the first calculating device which reflects second image, this. Next Napier's bone which reflect this image, and last Pascaline which represents this image. So these images and topics you have learned in your class 5th syllabus content. So I hope everyone understand these terms. So this is the assignment for all of you to complete this assignment on your copy and book. Now let's move to our next point, which is generations of computers. The first electronic computer called Attensoft-Berry computer or ABC was developed about 70 years ago. मीन्स जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको हम शॉर्ट में ABC यानी एटेंसॉफ्ट-बेरी कंप्यूटर बोलते हैं, वो डेवलप्ड हुआ था आज से 70 साल पहले. सिंस देन computers had gone through 5 main stages of development called generation. What is the meaning of generations? According to the development phase of technologies in computer science, we categorize each phase into a certain time duration which is called generations. यानी कि कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के विकास के हिसाब से हमने कंप्यूटर्स के एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की है और उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स that were made around 60-70 years ago are known as the first generation computer. Modern computers that we use today are fourth generation computer. यानी कि आज से 60-70 साल पहले जब हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना था, डेवलप्ड हुआ था, तो उस जनरेशन को हम कहते थे फर्स्ट जनरेशन. और अब जो मॉडर्न कंप्यूटर बन रहे हैं, इस मॉडर्न कंप्यूटर्स की जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, features of different generations.
computers of each successive generation are based on an improved technology that substantially improve their performance and reduce the cost of their ownership. मीन्स जितने भी जनरेशन्स नेक्स्ट जनरेशन्स हुई हैं, यानी कि अपने से नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली जनरेशन हुई हैं, हमेशा उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई हैं जिससे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है. द फॉलोइंग टेबल presents a brief description of the technology used in different generation of computers and their distinctive features. यानी कि नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें जनरेशन्स दी हुई हैं, उनके कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती थी ये दी हुई है, उनके कौन कौन से फीचर्स थे और उस टेक्नोलॉजी के उस जनरेशन्स के क्या एग्जाम्पल हैं ये दिए हुए हैं. तो एक एक करके इनको देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट जनरेशन. द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज 1940 टू 1956, यानी 1940 से 1956 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन. और इसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स. ये उस समय के पार्ट्स थे कंप्यूटर में जो यूज होते थे, यानी उस समय की ये टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम यूज करते थे, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स. इस समय के जो कंप्यूटर्स थे उनके क्या फीचर्स थे, दीज कंप्यूटर्स वर वेरी बिग. इस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, एक एक रूम के बराबर कंप्यूटर होते थे. They worked slowly and generated a lot of heats, यानी कि उस समय के कंप्यूटर बहुत ही स्लो वर्क करते थे और बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते थे. What are the examples of first generation computer? These are the examples of first generation computer: ENIAC, ADVAC and UNIVAC. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हो गए, फीचर्स हो गए, कौन से उसमें पार्ट्स यूज होते थे, हमने ये देख लिया. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर 1956 टू 1963. 1956 से लेके 1963 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेकेंड जनरेशन के लिए कहा जाता है. पार्ट्स यूज और टेक्नोलॉजी यूज्ड, सेकेंड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो है ट्रांजिस्टर्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज जनरेशन कंप्यूटर्स? दीज वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर कंप्यूटर्स. यानी कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में छोटे थे, फास्ट वर्क करते थे और मोर एक्यूरेट थे अपने पहले यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में. देन सेकेंड पॉइंट, दे यूज पंच्ड कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप्स टू स्टोर डाटा. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि इस समय के कंप्यूटर का मेन क्वालिटी क्या थी, इसमें पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स यूज किए, जिसकी वजह से इस समय के कंप्यूटर के थ्रू हम आसानी से डाटा को स्टोर कर सकते थे. एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 7090, IBM 7094 एंड UNIVAC 1108. ये वो कंप्यूटर हैं जो सेकेंड जनरेशन के टाइम ड्यूरेशन में डेवलप किए गए थे. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. द टाइम ड्यूरेशन फॉर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971, यानी कि 1964 से 1971 के बीच का जो टाइम है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का है. पार्ट्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट और IC. इसमें IC का यूज होना शुरू हुआ जो आज के कंप्यूटर्स में भी होता है.
What are the features of third generation computers? These were smaller, faster and more reliable than second generation computer. ये फास्ट थे, छोटे थे साइज में और मोर एक्यूरेट थे सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में. यूज ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. डिस्क स्टोरेज ऑल्सो बिगैन. यानी कि फर्स्ट टाइम कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था और इस समय डिस्क स्टोरेज की फैसिलिटी भी स्टार्ट हुई. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ, थर्ड जनरेशन में, और डिस्क स्टोरेज की फैसिलिटी कब स्टार्ट हुई, तो ये भी हुआ था थर्ड जनरेशन में. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 370 एंड Altair. तो ये एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के. नाउ मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट जनरेशन which is fourth generation computers. Time duration is 1971 to present. Technology used or parts used microprocessor. These computers are even smaller, more powerful and reliable. यानी कि इस समय के कंप्यूटर ज़्यादा साइज में छोटे थे, पावरफुल थे और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे. दे सपोर्ट ए होस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस. यानी कि इस समय IPO साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे वर्किंग स्टार्ट हुई और बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस आए जिनका हम आज करंट में यूज करते हैं. साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यानी मशीन या डिवाइसेस का भी हम यूज करते हैं. मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो हैं हमारे, यानी अब जो इस समय जो हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. द टाइम ड्यूरेशन इज प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. यानी कि अभी का समय और फ्यूचर का जो आने वाला समय है उसको हम क्या कहेंगे, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. पार्ट्स यूज और टेक्नोलॉजी यूज्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसे हम शॉर्ट में AI भी कहते हैं. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन आर स्टिल इन द नेसेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि ये फीचर्स क्या है कि इस समय के जो भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं या जो भी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, इस पे अभी वर्किंग हो रही है. तरह तरह के रोबोट्स बनाए जा चुके हैं और उसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है और अभी भी ये डेवलपमेंट फेज में है. इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को भी फिफ्थ जनरेशन का ही एक पार्ट मानते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी आती है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी आता है. ये सारे फिफ्थ जनरेशन के ही एग्जाम्पल हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, trendy bytes. Altair 8800 is considered as the first personal computer that heralded the personal computer revolution we are witnessing today. It was made by an American company called MITS, Micro Instrumentation and टेलीमेंट्री सिस्टम. तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर Altair 8800 को माना जाता है, यानी कि जो हम आज जिस विटनेस हैं, जिन कंप्यूटर्स को आज हम देख रहे हैं, उसको एक अमेरिकन कंपनी MITS यानी माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंट्री सिस्टम नाम की कंपनी ने डेवलप किया था और इसको हम फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर भी यानी PC भी कहते हैं, जिसका नाम है Altair 8800. So students, on the basis of today's online class, write down the questions and write answer of these questions. The first question is, in which generation keyboard and monitors
were used? Second question, what are the features of third generation computers? Third question, write down the examples of fourth generation computers. So, thanks for joining. Stay safe, stay healthy.